میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایشیا کے ایک ایسے ملک کی سیر کرواؤں گا جو پچھلی 2 دہائیوں سے پوری دنیا میں اپنا نام بنا رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں یہ ملک سنگاپور کا مقابلہ کرے گا اور ایشین ٹائیگر کی لسٹ میں اس ملک کا شمار بہت جلد ہو جائے گا۔ یعنی آج میں آپ لوگوں کو قدیم و جدید اماج گاہوں کی سرزمین ویتنام لے کر چلوں گا اور آپ لوگوں کو ویتنام کے بارے میں ان تمام حقائق سے بھی آگاہ کروں گا جن سے آپ آج سے پہلے لا علم تھے۔ حسب معمول نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگ جلد سے جلد دیکھ سکیں۔ دوستو، ویتنام تقریباً 9.5 کروڑ افراد کی آبادی کے ساتھ ایشیا کا 9واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جبکہ پوری دنیا میں آبادی کے حوالے سے ویتنام کا شمار 14ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ ویتنام 3,31,230 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ پوری دنیا میں 66ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے اور رقبے کے لحاظ سے ویتنام ایشیا میں 19ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ویتنام کے اگر محل وقوع کی بات کریں تو اس کے مشرق اور جنوب مشرق میں بحیرہ جنوبی چین ہے، جبکہ سمندر سے اگلی جانب ملائیشیا، فلپائن، برونائی اور انڈونیشیا واقع ہے۔ شمال کی طرف چین، شمال مغربی طرف لاؤس، جنوب اور جنوب مغربی طرف کمبوڈیا اور جنوب مغربی طرف ہی خلیج تھائی لینڈ کے پار تھائی لینڈ واقع ہے۔ ہنوئی ویتنام کا دارالحکومت ہے، جبکہ ہوچی من سٹی ویتنام کے عظیم ترین اور قدیم شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ یہ شہر ویتنام کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے۔ آثار قدیمہ والے ویتنام میں انسانی زندگی کے وجود کی تصدیق کچھ 5 لاکھ سال پہلے کی کرتے ہیں، مگر یہ دنیا کب وجود میں لائی گئی، کب ویتنام پر انسانی زندگی کا ظہور ہوا، یہ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ آثار قدیمہ والے یہ اندازہ لگانے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں کہ 1000 سال قبل مسیح میں ویتنام میں لوگ چاول کی کاشت کرنے لگ گئے تھے، یعنی جدید زندگی کا ظہور کوئی 1000 قبل مسیح سے ملتا ہے۔ 111 قبل مسیح سے 939 عیسوی تک ویتنام کا شمالی حصہ چائنا میں قائم ہونے والی ایک سلطنت کا حصہ تھا۔ اس سلطنت کے دور میں کئی ایک چینی خاندانوں نے ویتنام پر حکومت کی۔ 939 سے ایک آزاد ویتنام سلطنت کا وجود پیدا ہوا۔ آنے والی کچھ صدیاں ویتنامی رہنماؤں نے اپنی آزاد حکومت قائم رکھی، لیکن 1406 کو شروع ہونے والی منگ ہو جنگ نے ویتنام کو آزادی سے ایک بار پھر محروم کر دیا۔ یہ جنگ 1 سال سے بھی کم عرصہ جاری رہی، مگر اس جنگ کے بعد ویتنام کے کئی علاقے دوبارہ چائنا نے فتح کر لیے تھے۔ ان علاقوں میں ہوچی من سٹی اور ہنوئی جیسے شہر بھی شمار تھے، یعنی ویتنام کے جو شہر آج ترقی کی راہ پر صحیح طرح سے گامزن ہیں وہ چائنا کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ 1427 تک چائنا کو بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا اور یہ علاقے ایک بار پھر سے ویتنامی رہنماؤں کے قبضے میں آ گئے۔ 19ویں صدی میں جب فرانسیسیوں کی نظریں اس علاقے پر پڑیں تو انہوں نے آنے والے کچھ ہی سالوں میں اندر ہی اندر سے خانہ جنگی کے ذریعے اپنا دبدبہ قائم کر لیا اور 1958 کو فرینچ انڈو چائنا یعنی فرانسیسی ہند چین کی بنیاد رکھی۔ 1888 عیسوی تک انام، ٹونگن، کوچین چائنا، کمبوڈیا اور ویتنام کے کافی علاقے اس فرانسیسی کالونی کا حصہ بن گئے تھے۔ 1893 میں لاؤس اور 1900 میں کوں وانگزو وان کو بھی اس فرانسیسی کالونی کا حصہ بنا لیا گیا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران 2 دسمبر 1945 کو شمالی ویتنام نے فرانس کی طاقت کو ویتنام میں کم ہوتے دیکھا تو آزادی کا اعلان کر دیا، جبکہ جنوبی ویتنام نے آزادی کا اعلان 14 جون 1949 کو کیا تھا۔ 1954 میں جنیوا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہند چینی میں فرانس کے اقتدار کے خاتمے اور لاؤس، کمبوڈیا اور ویتنام میں آزاد مملکتوں کے قیام پر اتفاق کیا گیا تھا۔
लेकिन इस वक्त वियतनाम को 2 हिस्सों में तकसीम करने पर फैसला किया गया और इसको मुत्तहिद करने का फैसला वियतनामी अवाम पर छोड़ दिया गया कि वो इस बारे में क्या राय देते हैं। यूं 1954 में वियतनाम को हकीकी मानों में फ्रांस से आज़ादी नसीब हुई थी। 1975 में शुमाली वियतनाम ने जनूबी वियतनाम को फतह कर लिया। यूं 2 जुलाई 1976 को जनूबी वियतनाम को शुमाली वियतनाम से इल्हाक करना पड़ा, जिसके बाद वियतनाम एक मुकम्मल मुल्क बनकर दुनिया के नक्शे पर उभरा। इस इश्तराक के बाद वियतनाम का नया नाम इश्तराकी जमहूरिया वियतनाम रखा गया, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने एक आज़ाद मुमलकत के तौर पर 20 सितंबर 1977 को कबूल किया था। वियतनाम के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो वियतनाम के कल्चर में आपको चाइना, जापान, फ्रांस और अमरीकियों का रंग खूब नजर आएगा। वियतनाम की करेंसी पाकिस्तान से बहुत कमज़ोर समझी जाती है। पाकिस्तान का 1 रुपया वियतनाम के 204.85 डोंग के बराबर है। वियतनाम की करेंसी को वियतनामी डोंग कहा जाता है। वियतनाम का डोमेन नेम .vn है। वियतनाम का कॉलिंग कोड +84 है। वक्त के लिहाज से वियतनाम पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। वियतनाम पाकिस्तान के मशरकी जानब 4367 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। वियतनाम के झंडे में सुर्ख रंग इस खून को ज़ाहिर करता है जो वियतनाम जंग के दौरान वियतनाम के उन लोगों ने अपने वतन की आज़ादी की खातिर बहाया था, और सितारे की 5 किरणें किसानों, मजदूरों, दानिशवरों, नौजवानों और फौजियों को जाहिर करती है। टेट वियतनाम का बहुत ही मशहूर त्यौहार है जो हर नए चीनी साल के मौका पर 16 फरवरी को मनाया जाता है। वियतनामियों के घरों की तामीर में आपको चीनी और फ्रांसीसी तर्ज तामीर का रंग नजर आएगा। ज़राअत के शोबे में सबसे ज़्यादा अहमियत चावलों की फसल पर दी जाती है। पहाड़ियों पर ऊंची नीची जगहों पर जहां भी नजर दौड़ाएं चावलों की ही काश्त नजर आएगी। फांसीपन, जिसे रूफ ऑफ इंडो चाइना भी कहा जाता है, वियतनाम में मौजूद सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है। वियतनाम में इलेक्ट्रॉनिक्स की सन्नत की तरफ बहुत तवज्जो दी जा रही है। ये अंदाज़ा भी लगाया जाता है कि 2025 तक वियतनाम अपनी माइशत के हवाले से दुनिया भर में 21वें नंबर पर आएगा और 2050 तक वियतनाम सिंगापुर का मुकाबला करेगा। तेल, ज़राअत और सनत के अलावा सियाहत भी वियतनाम की माइशत में इजाफे की एक बड़ी वजह है। 1,29,22,150 लोगों ने 2017 में वियतनाम का सफ़र किया। ये तादाद पिछले कई सालों से बढ़ रही है और हर साल इसमें लाखों सियाहों का इजाफा हो रहा है। सियाहत एक ऐसा शोबा है जो किसी भी मुल्क को कुछ ही सालों में बुलंदी पर ला सकता है, और यही शोबा वियतनाम की तरक्की के इजाफे की अहम वजूहात में से एक है। वियतनाम के शुमाल की जानिब सुर्ख दरिया बहता है और जुनूब की जानिब दरियाए मियोंग, जो काश्तकारों को पानी मुहैया करते हैं ताकि लोग फसलों की काश्त कर सकें। फुटबॉल और मार्शल आर्ट, ये दोनों खेलें वियतनाम में ज़्यादा और शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं, जबकि बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, पिंग पोंग और शतरंज दीगर खेली जाने वाली खेलें हैं। 2008 में शरह तालीम 90% थी, जो अब बढ़कर 97.3% हो चुकी है। तालीम की तरफ भी पहले से बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। वियतनाम की आबादी के अगर मज़ाहब की बात की जाए तो मुल्की आबादी का 73.2% वियतनामी फोक मज़हब की पैरवी करते हैं, 12.2% बुद्ध मज़हब की, 8.3% ईसाइयत की, 4.8% काओडिज्म, 1.4% हाउ हाउ, जबकि 0.1% दीगर मज़ाहब के मानने वाले हैं। वियतनाम की आबादी में 85.7% वियतनामी लोग, 1.9% ताई, 1.8% ताई, 1.5% मोंग, 1.5% खमर, 1.2% हमोंग, 1.1% ननंग
1% हाओ, जबकि 4.3% तादाद ऐसे लोगों की है जो दीगर मुमालिक से काम काज की गर्ज से आकर वियतनाम में बस गए हैं। वियतनामी वियतनाम की कौमी और सरकारी ज़ुबान है। ये ज़ुबान वियतनाम में ज़्यादा तादाद में बोली जाने वाली ज़ुबान है, जबकि चीनी, जर्मन, फ्रांसीसी, चाम, ननंग, चेक और पोलिश दीगर बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं। अंग्रेज़ी दूसरी ज़ुबान के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी गार सुन डूंग की गार भी वियतनाम में ही मौजूद है, जिसे देखने लाखों सयाह वियतनाम के सूबे क्वांग वना की जानिब सफ़र करते हैं। बन चाओ के नाम से मौजूद वियतनाम में एक ऐसी जगह है जहां का पानी इतना गर्म होता है कि अगर इसमें अंडे को डाल दिया जाए तो वो भी उबल जाएगा। वियतनाम में एक ऐसा दरिया है जिसे परफ्यूम रिवर का नाम दिया गया है। यह नाम इसे इस लिहाज से भी दिया गया है क्योंकि मौसम ख़ज़ा में जब दरिया के किनारे फूलों के ख़ास किस्म के पौधे अपने खुशबूदार फूल दरिया के पानी में गिराते हैं तो पानी से खुशबू आती है। यही वजह है इस दरिया को ये नाम देने की। वियतनाम के लोग भी चाइनीज़ लोगों की तरह कुत्तों और बिल्लियों का गोश्त बड़े शौक से खाते हैं। वियतनाम में कुत्ते 3 तरह के पाले जाते हैं। एक कुत्ते वो होते हैं जिन्हें पालने के बाद इनसे निगरानी का काम लिया जाता है। दूसरी किस्म ऐसे कुत्तों की होती है जिन्हें पालने के बाद खुसूसी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो शिकार के काबिल बनाए जा सकें। और तीसरी किस्म ऐसे कुत्तों की होती है जिन्हें पालने के बाद खाया जाता है। अगर आप काजू के शौकीन हैं तो आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि वियतनाम अपने काजू की एक्सपोर्ट के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर आने वाला मुल्क है और दुनिया के 37% काजू वियतनाम ही पैदा करता है, जबकि दुनिया में चावलों की एक्सपोर्ट के हवाले से वियतनाम का दूसरा नंबर है। कॉफ़ी की एक्सपोर्ट में भी वियतनाम दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है और पूरी दुनिया की 20% कॉफ़ी वियतनाम से ही हासिल की जाती है। वियतनाम में 8 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं जो सयाहों की तवज्जो का खास मरकज बनी हुई हैं। वियतनाम में चावलों से तैयार होने वाली शराब बेहद शौक से पी जाने वाली शराब है, जिसे बनाने के बाद एक बोतल में एक सालम सांप के साथ भर दिया जाता है। इस शराब को वियतनाम में स्नेक वाइन के नाम से पुकारा जाता है। ये चाइना और वियतनाम में बहुत ही मकबूल मशरूब है। वियतनाम जानवरों और दरख्तों की अफजाइश के हवाले से दुनिया भर में 16वें नंबर पर आता है। वियतनाम में 16,000 इकसाम के दरख्त, 840 इकसाम के परिंदे, 310 इकसाम के जानवर और 78 इकसाम ऐसे जानवरों की है जो ना तो परिंदों में शुमार होते हैं और ना ही जानवरों में। वियतनाम में आपको इतनी गाड़ियां नजर नहीं आएंगी जितने आपको वियतनाम की सड़कों पर मोटरसाइकिल चलते नजर आएंगे। कमोबेश 1 करोड़ मोटरसाइकिल रोजाना वियतनाम की सड़कों पर दौड़ते हैं। वियतनाम में तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख के करीब मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं। वियतनाम में कछुए को अच्छे नसीब और किस्मत की निशानी समझा जाता है। कछुए की लंबी उम्र की वजह से वियतनाम के लोग इसे अपने घरों में ये सोचकर रखते हैं कि इससे इंसान की उम्र में इजाफा हो सकता है। 1950 से शुरू होने वाली वियतनाम जंग, जिसमें शुमाली और जनूबी वियतनाम के लोगों के दरमियान 20 साल जंग जारी रही। वियतनाम में इंसानी कत्लो गारत के लिहाज से सबसे बुरे दिन शुमार किए जाते हैं। जिस जंग में कमोबेश 40 लाख लोग मार दिए गए थे। वियतनाम जंग अमरीकियों की जानिब से लगाई जाने वाली जंग थी जिसमें 20 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्चा आया था। वियतनाम में इस जंग को अमेरिकन वार इन वियतनाम के नाम से मौसूम किया जाता है। वियतनाम का हर मर्द और औरत आपको काम करते नजर आएंगे। तरक्की याफ्ता मुमालिक में बेरोजगारी के हवाले से वियतनाम में बेरोजगारों की तादाद बहुत ही कम है। ये इनफरादी कुव्वत भी वियतनाम की तरक्की की एक बड़ी वजह है। नगोयन वियतनाम में लड़के और लड़कियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। वियतनाम में खंजीर को दूसरे जानवरों की तरह घरों में पाला जाता है। हालूंग बे वियतनाम में मौजूद दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है।
हालोंग इस जगह का नाम है, जबकि बे खलीज को कहा जाता है। दोस्तों, ये थी वियतनाम के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मुख्तसर सी वीडियो। वियतनाम के तफरीही मुकामात, वीज़े के हसूल और वियतनाम के बारे में रह जाने वाली बातों का तज़किरा हम वियतनाम पर बनाई जाने वाली अगली वीडियो में करेंगे। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें और अपनी कीमती आरा बज़रिया कमेंट हमें अरसाल कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।